Good morning students, welcome to your biology class. Dear students, this is the third video of diversity in the living world. So we are discussing biodiversity and so far we have completed 5 kingdom classification. And in our previous video we have discussed kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi. So today we are going to discuss kingdom Plantae. And you already know some characteristics of kingdom Plantae. For example, you know plants do not have locomotion, they do not move from one place to another place. Second, plants are green in color because they have chlorophyll in them. So plants their food by the process of photosynthesis. Plants are autotrophic in nature. Auto means self, trophic means nutrition. So the meaning of autotrophic is self-nutrition, the process by which plants prepare their own food. Okay, you already know plant have a cell wall, plant cell have a cell wall, and that cell wall is made up of cellulose. We have already discussed these points in our previous video and you have some previous knowledge of this topic also. So we are going to study about classification of plants, how plants are divided into further groups. Plants को further groups में कैसे divide किया गया है? So plants are divided into further groups on the basis of their differentiation, how much their body is differentiated, if their body have root, stem, leaves, or they are absent. So if root, stem and leaves are not present in the plants, they are known as Thallophyta. If root, stem, leaves are not present, their body is thallus-like, so they are known as Thallophyta. अगर इनकी बॉडी थैलस लाइक है तो उनको हम थैलोफाइटा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एल्गी. जब भी आप स्कूल जाते हैं तो आपने हासाका का पॉन्ड देखा होगा ना, वो मोस्टली कैसे एल्गल ब्लूम से कवर होता है. तो क्या उस एल्गी में स्टेम, रूट, लीव्स होते हैं? नो, देयर बॉडी इज थैलस लाइक. तो जिन प्लांट्स की बॉडी थैलस लाइक है उनको हम थैलोफाइटा कहते हैं. दे डू नॉट हैव ए डिफरेंशिएटेड बॉडी. नाउ द प्लांट्स विच हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स are further divided. For example, if they have stem like, root like structures, they belong to Bryophyta. अगर उनमें stem जैसे, root जैसे structures present है तो उनको हम Bryophyta कहते हैं. But these bryophytes do not have vascular tissue, and you know xylem and phloem are vascular tissue. Now if plant has vascular tissue, they may be pteridophyte. Now pteridophyte हैव टू रूट, स्टेम एंड लीव्स. टेरिडोफाइट में रूट भी है, स्टेम भी है, लीव्स भी हैं. सो ये जो वेस्कुलर टिश्यू को डिफ्रेंशिएट किया गया है, दिस डिविजन इज बेस्ड ऑन द सीड प्रोडक्शन. इफ सीड्स आर प्रेजेंट, अगर सीड्स प्रेजेंट है तो उनको हम कहते हैं फिनेरोगैम्स. फिनेरोगैम्स आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. ओके, सीडलेस प्लांट्स कौन से हैं जिसमें सीड्स प्रोड्यूस ही नहीं होते? क्रिप्टोगैम. आपने फ्रूट्स खाए होंगे ना, तो फ्रूट के अंदर से सीड्स निकलते हैं. तो अगर किसी प्लांट में सीड्स नहीं होते तो वो टेरिडोफाइटा को बिलोंग करते हैं. दे आर सीडलेस प्लांट, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स. ओके, अगर सीड्स प्रोडक्शन होता है तो दे आर डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. अच्छा, ये डिवीजन किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ अनकवर्ड एंड कवर्ड सीड्स. देखिए, अगर किसी प्लांट में अनकवर्ड सीड्स हैं, सीड्स के ऊपर किसी तरीके की कोई कवरिंग नहीं है, नेक्ड सीड्स हैं, सो दोज प्लांट्स आर नोन एज जिम्नोस्पर्म. इफ plants have covered seeds, now those are known as angiosperm. For example, अभी मैंगो का सीजन था, मैंगो आप सब ने खाए होंगे, है ना. तो जो सीड निकली वो किसके अंदर से निकली? मैंगो फ्रूट के अंदर से. तो वो सीड क्या हो गई? कवर्ड हो गई. इट इज कवर्ड बाय अ फ्रूट. ओके, सो आपका मैंगो किस में आएगा? एंजियोस्पर्म में आएगा. नाउ दीज एंजियोस्पर्म आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. If the seed embryo has one cot, then it is monocot. Mono means one. And if the seed embryo have two cots, then it is dicot. Di means two. So plants को further divide किया गया है. एक बार फिर से देखिए. If plants do not have differentiated body, if they have thallus-like body, they are Thallophyta. If they have root, stem, leaf-like structures, they are known as Bryophyta. If
सीडलेस प्लांट्स आर देयर, दे आर नोन एज क्रिप्टोगैम. सो आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा कौन से हो गए? सीडलेस. इनमें सीड प्रोड्यूस होती ही नहीं है. दे आर सीडलेस प्लांट, सो दे बिलोंग टू क्रिप्टोगैम. सीड बियरिंग प्लांट कौन से हो गए आपके? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट. ओके, सो सीड बियरिंग प्लांट्स को हम कौन से कहते हैं? फिनेरोगैम्स. दे आर डिवाइडेड इनटू फिनेरोगैम्स. नाउ अब जो सीड्स प्रोड्यूस हो रही है वो कवर्ड है या अनकवर्ड? इफ सीड्स आर अनकवर्ड सो दे आर जिम्नोस्पर्म, and if seeds are covered they belong to angiosperm. Now if one cot is present, one single cotyledon is present in the plant, that is monocot, and if two cotyledons are present then they are dicots. Okay, so here are some difference between cryptogam and phanerogams. Cryptogam कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स. स्पोर्स की फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करेंगे. फिनेरोगैम्स कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? फिनेरोगैम हैव सीड्स, तो वो सीड्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करेंगे. ये जो वर्ड है यहाँ पे क्रिप्टोगैम, इसका मतलब होता है हिडन मैरिज, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओके, सो क्रिप्टोगैम हैव हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छुपे हुए हैं, है ना. फिनेरोगैम्स हैव एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. क्रिप्टोगैम जो है वो लेस इवॉल्व है क्योंकि वो सीडलेस प्लांट है. ओके, एंड फिनेरोगैम्स आर हाईली इवॉल्व प्लांट्स. जैसे पहले कीपैड के फ़ोन आते थे और अब स्मार्टफोन आ गए, तो जो न्यू टेक्नोलॉजी वाला कौन सा है? मोर इवॉल्व कौन सा होगा? स्मार्टफोन होगा बेटा. और प्रिमिटिव कौन सा होगा? आपका कीपैड वाला फ़ोन होगा, है ना. ऐसे ही क्रिप्टोगैम जो है दे आर लेस इवॉल्व और जो फिनेरोगैम्स है दे आर हाईली इवॉल्व. सो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा and your pteridophyta, they comes under cryptogam. Gymnoangiosperm, monocot, dicots come under phanerogams. Okay, so the kingdom plant is divided into thallophyta. Bryophyta is the second division, third division is pteridophyta, fourth is angiosperm, fifth is gymnosperms. ओके, या हम जिम्नोस्पर्म्स को पहले स्टडी करेंगे, एंजियोस्पर्म्स को बाद में, बिकॉज जिम्नोस्पर्म्स are less evolved and angiosperms are more evolved, highly evolved, sorry. Okay, so our first division is thallophyta and thallophyta में कौन आते हैं? algae. So thallophyta have thallus like body. यहाँ पे ये जो word है thallophyta, इसका मतलब ही है thallus like body. So these plants they do not have roots, stem and leaves. They have thallus like body, pouch like body. आपने algae देखी होगी जब भी आप स्कूल बस से आप हासाका के पॉन्ड को क्रॉस करते हैं, तो आपने देखा है कि वो जो पॉन्ड है जहाँ पे शिव मंदिर है वो पूरा एल्गी से कवर है. सो यू नो एल्गी इज एक्वेटिक. ओके, सो एल्गी इज मोस्टली एक्वेटिक. दे डू नॉट हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स. सो एग्जांपल of algae are Spirogyra, which is a filamentous algae, Eulothrix, Cladophora, Cara. So here is some examples of the algae. Thallophyta के examples है. All the algae belongs to the Thallophyta. Okay बेटा, algae aquatic है. Some algae is terrestrial also. Few algae grow on other plants also. आपने दूसरे plants पे भी algae को grow होते हुए देखा होगा. Algae require moist surface और जहाँ पे उसे moisture मिलेगा वो grow हो जाती है. Algae also live in symbiotic association with fungi. And the symbiotic association of algae and fungi is known as lichens. Okay, जिसको आप lichens भी pronounce करते हैं. So algae may be unicellular, made up of single cell, like chlorella is a non-motile algae, Chlamydomonas which can move. Okay, they have flagella for the movement. Algae can be multicellular, it can be branched, it can be unbranched, it can be like a filament. So filamentous algae आपकी Spirogyra हो गई. अनब्रांच आपकी बोथ आर अनब्रांच्ड एल्गी हैं ये बेटा. मल्टी सेल्यूलर है बट दे डो नॉट हैव ब्रांचेस. सो स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स. ओके, एल्गी कैन बी फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड लाइक कारा. तो जो कारा है ना वो ब्रांच की फॉर्म में होती है. ओके, एल्गी कैन बी लिव इन द कॉलोनीज, ग्रुप में भी रहती है एल्गी. तो यहाँ पे वॉल्वॉक्स आपको दिख रही होगी, स्फेरिकल बॉडी है. सो एल्गी कैन लिव इन कॉलोनी ऑल्सो. ओके, Now the cell wall of algae consists of two layer. Algae की cell wall में two layer हैं. Inner layer is made up of cellulose, so it is cellulosic. Outer layer of algae consists of pectin. And algae also contain photosynthetic pigment because they prepare their food by the process of photosynthesis. And for photosynthesis,
they should have chlorophyll A, which is a universal pigment which is present in all green plants, which absorb sunlight. Chlorophyll B, C, all these absorb sunlight, but they give their sunlight to the chlorophyll A. Okay, it is the actual site for further reactions of the photosynthesis, for the light reaction. Okay, so chlorophyll A is the photosynthetic pigment. Other than chlorophyll A, they also have other pigments also, carotenoids, phycobilins. Okay, now algae, we all know plants store their food in the form of starch. So algae belongs to kingdom Plantae, so they also store their food in the form of starch. So algae store their food in the form of starch, laminarin starch, mannitol or Floridian starch. So algae can grow vegetatively. For example, Spirogyra, जैसे ही Spirogyra mature हो जाती है, it is a filamentous algae, it breaks into fragments. वो fragments में छोटे छोटे parts में break हो जाती है, and from each fragment new Spirogyra develops. So जब plant किसी part से grow होता है तो उसको हम कहते हैं कि vegetatively grow हो रहा है. Plant can, in algae, asexual reproduction is also there. It can reproduce with the help of asexual spores, which are motile as well as non-motile. So zoospore हो गए. Okay, जो motile spores होंगे, they have flagella for locomotion movement. Now algae can also reproduce sexually by the fusion of gametes. Male and female gametes से भी algae reproduce होती है. So algae, three types of reproduction. It can grow vegetatively. Vegetatively, reproduction is also a type of asexual reproduction. It can grow asexually with the help of spores, and it can grow sexually by the help of fusion of gametes. Now next, second division is Bryophyta. Bryophyta are the first टेरेस्ट्रियल प्लांट. देखिए एल्गी जो थी वो आपकी मोस्टली एक्वेटिक थी. सो ब्रायोफाइटा ऐसे प्लांट्स आ गए जिन्होंने लैंड के ऊपर ग्रो होना स्टार्ट कर दिया. सो दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. ओके, नाउ दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. प्लीज इसको ध्यान से सुने. ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके हायर एग्जाम्स में भी, ये फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है. वाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. ब्रायोफाइट्स को क्यों कहते हैं बेटा? बिकॉज दे ग्रो ऑन मॉइस्ट लैंड. वो मॉइस्ट लैंड के ऊपर, मॉइस्ट प्लेसेस पे, मॉइस्ट लैंड पे ग्रो हो रहा है, बट इट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल. देखो लैंड पे ग्रो हो रहा है, बट इट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. सो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसको किसकी ज़रूरत है? वाटर की ज़रूरत है. ओके, सो ये रीज़न है कि उनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है. अगर आप आंसर लिखते हैं ब्रायोफाइट्स ग्रो ऑन वाटर एंड लैंड, तो आपका आंसर रॉन्ग होगा. Okay, why bryophytes are known as amphibian of plant kingdom? Bryophytes are known as amphibian of plant kingdom because they grow on moist land and they require water for fertilization and completion of their life cycle. So they grow on moist walls, damp rocks, moist soil, decaying logs. आपने देखा होगा कि कोई भी कुएं के पास आप विजिट करते हैं, है ना, तो वहाँ पे एक लकड़ी है और वो लकड़ी में वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और वो डीके भी हो रहा है. वो जो लकड़ी का लॉग है वहाँ पे भी ब्रायोफाइट्स ग्रो होते हुए आपने देखे होंगे. नाउ दे हैव थैलॉइड प्लांट बॉडी. दे डू नॉट हैव ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. देखिए यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं है. हाँ, रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे. So bryophytes do not have differentiated body, they do not have true root, stem and leaves, but they have root-like structure, they have stem-like structure. So root-like structure, R for root, R for rhizoid. So root-like structure, rhizoids are present. Now what is the function of rhizoid? जो function roots का है वही rhizoid का होगा बेटा. जैसे rhizoids क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. रूट्स भी वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. रूट्स किस में हेल्प करते हैं? अटैचमेंट ऑफ द प्लांट विद द सॉइल. द सेम वे ब्रायोफाइट जहाँ पे भी ग्रो हो रहा है, वी कॉल इट एज सबस्ट्रेटम. उस सरफेस को हम सबस्ट्रेटम कहते हैं, है ना. सो दीज राइजोइड्स हेल्प दी ब्रायोफाइट्स टू अटैच विद द सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में हेल्प कर रहा है, प्लस वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है. नेक्स्ट है टेरिडोफाइट. Pteridophyte have
डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, देखिए अभी तक ना आपने थैलोफाइटा में डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी पढ़ा ना ब्रायोफाइटा में. सो आपके टेरिडोफाइट्स हैं, दे हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी. इट मीन्स दे हैव ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, एंड दे आर द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट. आपके ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट था. ना एल्गी में जाइलम फ्लोएम थे, ना आपके ब्रायोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम थे. टेरिडोफाइटा से वेस्कुलर टिश्यू की स्टार्टिंग हो जाती है, जाइलम एंड फ्लोएम, फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो एग्जाम्पल हो गए आपके टेरिडोफाइट के, फर्न्स हो गए, मार्सिलिया हो गए. ओके, तो टेरिडोफाइट्स के ये एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, इक्विस्टेम, एडेंटम. ओके, these are the some example of the pteridophytes. So here are some difference between bryophytes and pteridophytes. So differentiation table is given in your textbook. So try to understand that, read that table. So bryophytes, you know they have thalloid body. They do not have true root, stem and leaves. While pteridophyte, they have differentiated plant body. They have true root, stem and leaves. Now you know bryophytes, they are non-vascular. They do not have xylem and phloem. Pteridophytes, they have xylem and phloem. Okay, so vascular system is absent in bryophytes, but vascular system is present in pteridophytes. Now you know in bryophytes, instead of roots, root-like structure rhizoids are present, which help in the absorption of water and mineral and help in anchoring. What is anchoring? Attachment. In pteridophytes, roots are present. Okay, here are the some differences, and please read these differences from your textbook also. So gymnosperms have naked seed. The meaning of word gymno means naked and sperm means seed. जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या है? यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का मतलब है naked seed. ओके, सो एवरग्रीन प्लांट्स हैं, पाइन्स देखे होंगे आपने, साइकस, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं. आपके स्कूल के गार्डन में भी लगे हुए हैं बेटा, जहाँ आपकी असेंबली होती है ना, वहाँ पे भी आपको जिम्नोस्पर्म्स देखने को मिलेंगे. बॉयज़ एंड गर्ल्स साइड, दोनों साइड लगे हुए हैं. एंड दीज आर द ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो आप किसी होटल में विजिट करते हैं, या बहुत सारे लोगों ने अपने घर में भी लगाए हैं. ओके, सो gymnosperm, they have naked seeds. Okay, so you can see how the leaves are present. Okay, they have simple needle like, है ना, pointed होती है, needle like होती हैं. Okay, plant body is sporophytic. Sporophytic मतलब हो गया जब वो स्पोर प्रोड्यूस करेगा तो sporophytic, एंड जब गैमेट प्रोड्यूस करेंगे तो गैमेटोफिटिक. Okay, now in Pinus, fungi association is there, and that is known as mycorrhiza. What is mycorrhiza? मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. Mycorrhiza is the association of fungi with the roots of higher plants. तो यहाँ पे देखिए पाइनस के साथ जो पाइनस के साथ जो फंजाई है वो सिम्बायोटिक फंजाई जो है वो हायर रूट्स में रहती है. ठीक है, पाइनस के साथ, पाइनस की रूट्स में जो फंजाई का एसोसिएशन है उसको हम माइकोराइजा कहते हैं. ओके, जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, जो मेल और फीमेल स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है. माइक्रोस्पोर्स आर मेल स्पोर्स एंड मेगास्पोर्स आर फीमेल स्पोर्स. तो आपने इस तरीके से कोन देखे होंगे. तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर की बजाय किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा? कोन में प्रेजेंट होते हैं. ओके, किस में प्रेजेंट होते हैं? कोन में. तो देखो माइक्रोस्पोरेंजिया को मेल स्ट्रोबलाई कहा जाता है, मेल कोन कहते हैं हम, और मेगा स्पोर्स को हम जो हैं वो आपके फीमेल होंगे, फीमेल कोन होंगे. ओके, सो फीमेल स्ट्रोबलाई. तो ये देखिए आपका. ओके, मेल और फीमेल स्ट्रोबलाई जो कोन है वो सेम प्लांट पे भी ग्रो हो सकते हैं, जैसे पाइनस पे मेल फीमेल दोनों सेम पे होते हैं. साइकस में जो है दोनों डिफरेंट प्लांट पे ग्रो होते हैं. ठीक है. एंजियोस्पर्म आर योर फ्लावरिंग प्लांट. एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. ऐसा कोई भी प्लांट जिसके ऊपर आप फ्लावर देखते हैं तो वो आपके एंजियोस्पर्म्स है. दे हैव कवर्ड सीड. सीड कहाँ से निकलती है?
फ्रूट के अंदर से। अब आपको पता है फ्रूट कब लगेंगे, जब फ्लावर आएंगे। सो एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सो वॉल्फिया है वो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, 1 mm साइज है इसकी। यूकेलिप्टस बहुत 100 मीटर्स तक ग्रो होते हैं, आपने देखा है। सो एंजियोस्पर्म में जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड है, रूट में, स्टेम में, लीव्स में। ओके, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स प्रेजेंट हैं। दे आर हाईली वेस्कुलर प्लांट, दे हैव जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, सो एंजियोस्पर्म्स हो गए आपके, कवर्ड सीड्स हो गए, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। देयर कॉटलिडन, देयर एम्ब्रियो हैव 2 कॉट्स, उनके एम्ब्रियो में 2 कॉटलिडन्स भी प्रेजेंट होते हैं और 1 कॉटलिडन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर 1 कॉटलिडन प्रेजेंट होती है तो उसको सिंपली हम मोनोकॉट कहते हैं। अगर 2 कॉटलिडन्स प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम डाइकॉट्स कहते हैं। तो मोनोकॉट्स के आपके एग्जाम्पल कौन से हो गए, राइस, व्हीट, मेज। तो जितनी भी ग्रासेस हैं वो सारी मोनोकॉट्स हैं। ओके, ठीक है। डाइकॉट्स में आपका ग्रीन ग्राम आ जाएगा, पी आ जाएगा, टेमेरिंड आ जाएगा। सो हियर आर सम डिफरेंस बिटवीन जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स आर flowering plants, seed bearing plant. Gymnosperm have naked seeds, they do not have flowers. Okay, so seeds are enclosed in the ovary or in a fruit we know in angiosperm. Gymnosperm में seeds कैसी होती हैं बेटा, seeds are uncovered. Okay, now the angiosperm have triploid endosperm. Endosperm is basically used to nourish the embryo which is present in the seed. So they have triploid endosperm which is formed by the fusion of triple nuclei. Okay, ट्रिपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते, 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, तो ये क्या है यहाँ पे, ट्रिप्लॉइड। ओके, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो हेप्लॉइड है। एंडोस्पर्म क्या करता है बेटा, एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी एम्ब्रियो। एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर किस फॉर्म में, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स। जिम्नोस्पर्म में आपने अभी कोन देखे, कोन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंजियोस्पर्म्स के लीव्स फ्लैट होते हैं, जिम्नोस्पर्म में निडल लाइक होते हैं। एंजियोस्पर्म्स को फर्दर मोनोकॉट और डाइकॉट्स में डिवाइड किया है। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। दीज वर द सब डिफरेंसेस ऑफ gymno and angiosperm. Now your angiosperms are divided into monocot and dicot. एंजियोस्पर्म को मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड किया है। देखो एम्ब्रियो में अगर ये एक ही कॉटलिडन है तो मोनोकॉट, मोनो का मीन्स है 1, अगर 2 कॉटलिडन्स है तो डाइकॉट, तो यहाँ पे 2 कॉटलिडन्स है। ओके, मोनोकॉट्स में जो पेटल्स होती है ना, फूलों की जो पंखुड़ियाँ, जो पेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, 3 या 3 का मल्टीपल, जैसे 1, 2, 3, 6, 9। डाइकॉट्स में जो पेटल्स होंगी दे आर 5 और मल्टीपल ऑफ 5, जैसे यहाँ पे 5 दिखाई हुई है। ओके, अब मोनोकॉट्स में जो लीफ है वो दे हैव पैरेलल वेनेशन। यहाँ वेन्स देखी होंगी आपने लीव्स में, किसी भी लीफ को तोड़ के उसकी वेन्स देखिएगा, जो लाइंस आपको दिखाई देती हैं लीव्स के अंदर। सो दे हैव पैरेलल वेन्स, पैरेलल वेन्स दिखाई देंगे आपको। जितनी भी ग्रासेस हैं उन सब में पैरेलल वेन्स है। ओके, आपने पीपल का पत्ता देखा होगा, तो पीपल के पत्ते में आपने नेटवर्क देखा होगा वेन्स का, तो इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। वेन्स का जो अरेंजमेंट है उसको हम वेनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे वेनेशन कैसा था, पैरेलल। यहाँ पे वेनेशन कैसा है बेटा, रेटिकुलेट है, नेटवर्क लाइक है। ओके, वेस्कुलर बंडल्स जो है मोनोकॉट्स में वो स्कैटर्ड होते हैं, और वो स्कैटर्ड होते हैं इसलिए वहाँ पे ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। डाइकॉट्स में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और जब आप उन दोनों को एक पार्ट से स्टेम लेते हो, दूसरे से रूट लेते हो, तो वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, इसलिए डाइकॉट्स में ग्राफ्टिंग जो है वो पॉसिबल है। डाइकॉट्स में एम्ब्रियो में 2 कॉटलिडन्स है, मोनोकॉट्स में 1 कॉटलिडन है। डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम होता है, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी। मोनोकॉट में एडवेंशियस रूट सिस्टम है। ओके, डाइकॉट्स में स्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड है, मोनोकॉट्स में स्टेम इतनी ब्रांचेस नहीं होती हैं। डाइकॉट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, आपने देख लिया नेटवर्क जो है वेन्स का वो किस टाइप से है, और वहीं मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन है। डाइकॉट हैव पेटल्स, पेंटामेरस पेटल्स होते हैं या मल्टीपल ऑफ 5 है। मोनोकॉट्स में ट्राइमेरस पेटल्स हैं, है ना, फूल की पंखुड़ियाँ 3 या 3 का मल्टीपल है। वेस्कुलर बंडल जो डाइकॉट्स में है वो कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और ओपन है, लेकिन आपके मोनोकॉट्स में जो वेस्कुलर बंडल हैं वो क्लोज्ड हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया वेस्कुलर बंडल्स जो हैं डाइकॉट्स में वो रिंग की फॉर्म में अरेंज है,
लेकिन मोनोकॉट्स में वो रिंग की फॉर्म में अरेंज नहीं है, वो रिंग की फॉर्म में अरेंज नहीं है, वो कैसे है, स्कैटर्ड। डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है क्योंकि वेस्कुलर बंडल यहाँ पे कैसे हैं, ओपन है, तो आपके वेस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम जो है वो क्या है बेटा, वहाँ पे मेरिस्टेम है जो डिवाइड करने में हेल्प करेगा। मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ है वो एब्सेंट है। तो यहाँ पे आप रूट्स देखिए, है ना, मोनोकॉट्स में ये जो रूट्स हैं आपको देखिए, रूट्स का एक नेटवर्क सा है, गुच्छा है, आपको पता नहीं चलेगा मेन रूट कौन सी है, और डाइकॉट्स में आपको रूट जो है वो आसानी से दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। Please read these topics from your textbook also, and if you have some doubt then please ask me. Okay, thank you class.